Yeah. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhantamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratushe Namaha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्. All right. Yeah. So welcome everyone. So you know what? Last week I realized one feature of technology कि यदि आपके कैमरा ऑन होते हैं ना तो आपकी आवाजें भी बहुत अच्छे से क्लियरली सुनाई देती हैं. So I don't know. Or the point is like we are able to connect better. So if everyone feels like feel free to turn on your camera whenever you feel like and no restriction, but it's good to have it turned on. I know, I mean, if you would have met physically तो हम शायद अपने कैमरे की जरूरत नहीं होती, हम आमने सामने बैठ के बात करते. ऐसा तो नहीं होता कि आप किसी और रूम में होते और मैं किसी और रूम में होता. So just think about it if you want to turn on your camera. Nonetheless, we'll get started. Okay, wow. So at least I'm able to see and connect better with two people, two, three. Okay, great. Nice to see that. Okay, welcome. Uh, so anybody remember what we were discussing last time? We were discussing Sthit Pragya and then how we, his qualities, and then couple of class last we heard about the tortoise and then how he Yeah. walk and how he do his activities. That's what I'm Yeah, yeah, yeah. Correct. Tortoise was hours before, but उसके बाद हमने कुछ और भी discuss किया था. Yeah, and last class we were, I think, how he walk or something. Yeah. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. In 2.59, like we were discussing how, like this verse is like how to control the senses and all those things. So Yeah. Yes. How? Yes. so we were discussing like solution is not to stop the senses, but we have to direct them on the right direction. Yeah. To That was get right, to be able to taste the higher taste. Right. Yes. Yeah. Yeah. 2.59. I remember it always as Govinda's. I mean, the higher taste. So that is what it is all about. Yeah, जिसने गोविंदा में काफी खाया नहीं है उसे he will not realize what I mean to say, but go to a Govinda restaurant if there is one in your city for some time, and you'll stop eating any. You lose the taste of anything else, and that's what the point is. And why does that happen? Because we eat prasadam, but there is more to it. In fact, than this one. But anyways,
So let me just cover one thing also. Last time we couldn't cover this part for the previous verse. I thought we'll just cover it quickly. So this is what it's all about, right? So our soul, there are two ways. One is to restrict from sense enjoyment, like the yogi way of doing it. But mind फिर भी वहीं पर ही फंसा होता है. And that is, Krishna will talk about this in detail in the coming verse. But there is other way, which is like, that because by doing this आपका मन फंसा होता है, आपका टेस्ट जो है वो सेंस एंजॉयमेंट में, बिकॉज आप सोचते हो कि अरे हम आज से नॉनवेज नहीं खाएंगे, ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया, बट आपका मन नॉनवेज में फंसा हुआ है. नाउ हाउ टू टेक इट आउट, राइट? एंड यू कैन अप्लाई टू anything pretty much, right? And we talked about multiple examples last time. Sorry, Prabhuji, to interrupt. Like, yes, Puspaka Malu is yes. No, thank you. Is it visible again? Yes, thank you, Mal. Thank you, Prabhuji. Okay. Yeah, so even if we restrict from sense enjoyment, the taste for the sense enjoyment remains, right? It can be drugs, alcohol, non-veg, whatever XYZ you can put there. A simple example would be कि चलो हमने सोचा कि आज हम गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, लेकिन गुलाब जामुन खाना तो मन में लगा रहेगा, राइट? तो फिर क्या करें, मतलब उस केस में? So what is the solution? So the solution is कि develop a higher taste, right? And when you do that, then every activity that you do elevates you, right? आपको कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता उसके लिए. आप प्रसाद खा के भी प्योर हो सकते हो, आप कुकिंग करके भी प्योर हो सकते हो, आप क्लीनिंग करके भी प्योर हो सकते हो, राइट? इट इज नॉट जस्ट कि आप कोई भगवान की अर्चना करके ही प्योर होगे. तो मंदिर में अगर आप देखोगे तो एक बड़े मंदिर में बहुत तरह की सेवाएं होती हैं, लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, एंड दे गेट प्यूरिफाइड बाय डूइंग एनी ऑफ दैट, राइट? सो नीड नॉट बी ओनली वन स्पेसिफिक काइंड ऑफ सर्विस करेंगे तो ही हम प्योर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो मंदिर में पुजारी बैठे हुए हैं वो ज्यादा प्योर है. नहीं, हर जगह पे है जहां भी हम हायर टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट विल प्यूरिफाई अस एंड वी विल लूज the lower taste out of it, right? And it is very purifying. I mean, अगर किसी ने मंदिर में कभी आप जाके अगर सिर्फ क्लीनिंग करोगे ना, तो that is so purifying on its own. मतलब it gives you immense pleasure, I can tell you from my experience. But we don't get at least that opportunity in India, at least. But some of my visits to the US, they allowed us to kitchen to clean that and things like that. Oh wow, that's very satisfying. So all I'm saying is कि it doesn't matter आप क्या कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो ना, that matters a lot. Any questions so far? I hope this is what we were covering last time. If there is anything to discuss, we can discuss that. Okay. All right. So we can go to the today's verse. And frankly speaking, this is not very far from what we are discussing right now. So we'll try to cover today 2 verses if possible. If possible, 60 and 61. Let us see. That is the plan. And we'll see the difference between them. Okay. Let me decide. Yatato hyapi kaunteya purushasya vipashyita indriyani pramathini haranti prasabham manah. Anybody wants to decide? Prabhuji, can I try? Yes, Mataji, please. Thank you, Prabhuji. Yatato yapi kaunteya purushasya vipaschitah indriyani pramathini haranti prasambhavam manah. Thank you, Mataji. Anyone else wants to decide? Can I Prabhuji select? Yes. Okay, Prabhuji, I will do. Yatato hapi kaunteya purushasya vipashyata indrani pramathini haranti prasabham manah. Yeah, thank you. Anyone else? Prabhuji? Any Prabhuji want to decide?
Krishna Prabhuji, let me try. Yes. यति कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. All right. Thank you. Okay. Yeah. So it's a very beautiful verse. So this is the translation and translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is there. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who's endeavoring to control them. Okay. So it's a very interesting thing. It's a very interesting thing to realize, जो हम लोग generally realize नहीं करते हैं. We keep on talking about a topic a lot. I mean, at least within devotees. How do we get rid of anarthas? Right. काफी बार डिस्कस होती है ये टॉपिक. It looks like a very very big thing to do, right? इतना आसान नहीं लगता. But then what is the crux of the matter? So this verse and the next verse, they give a quite a lot of insight into it, right? अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान, आप देखो कि मतलब सेंसेस आर रियली रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, और साथ ही साथ वो माइंड को भी लेके चले जाते हैं, ठीक है. और किसके माइंड को? पुरुषस्य विपश्चिता, ओके, किसी ऐसे वैसे नहीं. विपश्चिता, विपश्चिता is a very high level, okay, a person of discrimination who really knows right and wrong, ठीक है, very very high position that person is. और and also the person who's trying to control them, तो क्लियरली पता है कि इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, and he is trying to do that, right? अभी लोग बोलते हैं ना, मैं एंगर नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मुझे एंगर से नहीं मिलता छुटकारा. लस्ट आई डू नॉट वांट, राइट? एंड नाउ वेयर does this all starts, all from where the lust starts, right? अगर आप आगे हम भगवत गीता में ये सब डिस्कस करेंगे. We are right now discussing the summary study, right? The second chapter is like the summary study of Bhagavad Gita. But in further chapters, Krishna describes कि ये lust आता कहाँ से? It all starts from senses, okay, because of our desires. I mean, that is what causes this lust. So and anger comes from that, and many other things come from that. So the point is, this is very very difficult to control, ठीक है. बहुत अच्छों की हालत खराब हो जाती है अगर हम इसे ऐसे कंट्रोल करने की सोचे तो, right? So anyways, so let us try to understand this verse a bit more, and we'll if possible we will try to even cover the solution of this in the next one. I mean, like the next verse if possible. So essentially श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, I think seventh canto में एक श्लोक है, and the श्लोक is like this: वर्जयेत प्रमाद गाथम अग्रहस्तो बृहद्व्रत इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति अपि यते मनः. So similar verse, मतलब काफी similar sounding verse है. इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति अपि यतेर मना. So यति क्या होता है उसमें? यति जो होता है वो, यति means anybody knows what yati means in Sanskrit? Okay. So रामानुजाचार्य का एक नाम यतिराज है, okay, if you read about him. So yati means sannyasi. Okay, so Ramanujacharya is called king of sannyasis. I mean, in their tradition, in the Sri Sampradaya tradition, and of course he is. So basically, so ये बोलते हैं कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति अपि यतेर मना, यानी यति जो सन्यासी होते हैं ना, उनका भी मन हर लेती है, इंद्रियां इतनी स्ट्रांग है. ओके, सेम थिंग कि मतलब पर्सन विपश्चिता जो है ना, दैट इज द लेवल ऑफ दैट यति. सो इस वर्ष में नारद जी कह रहे हैं ऐसा, मतलब यू नो, आई विल नॉट गो टू द कंप्लीट ट्रांसलेशन, दैट विल digress the topic, but the point that Narad Muni is making is that कि अगर कोई सन्यासी ना अपने सन्यासी के लेवल के लोगों का भी माइंड हर लेती है इंद्रिया, and there are so many examples, right? So अभी हम ये जो सेक्शन में है ना 60 to 63 वर्ष, यहाँ पर अर्जुन का जो एक क्वेश्चन था जो डिस्कस हो रहा है, राइट? बट एटलीस्ट इन दिस स्पेसिफिक सेक्शन यहाँ पर भगवान एक पॉइंट पे स्ट्रेस करते हैं कि अ पर्सन
who's not in Krishna consciousness can easily fall down. ठीक है, there are so many spiritual practices. ठीक है, यहाँ पर ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, और इनके बीच के बड़े सारे वेरिएंट्स हैं. उसमें भी भक्ति योग है, भक्ति योग के भी बड़े सारे वेरिएंट्स होते हैं. लोग कुछ कुछ चीजों को भी भक्ति बोल देते हैं. बट इफ यू आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इफ यू आर नॉट इन प्योर डिवोशनल सर्विस, तो यू आर गोइंग टू फॉल डाउन वेरी वेरी इजिली. बिकॉज व्हाई विल दैट हैपन? बिकॉज हायर टेस्ट है नहीं सेंसेस के पास. ठीक है, और उसके कारण यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देम, और वो ऐसे करके आपको लेके चले जाएंगे आपके साथ. यू विल नॉट रियलाइज. ठीक है, ये इनफैक्ट ये जो सेक्शन है, ये इस बात का भी अर्जुन का आंसर है. अर्जुन एक क्वेश्चन, एक शुरू में फर्स्ट चैप्टर में, इफ यू रिमेंबर, अर्जुन वाज सेइंग कि अरे मैं सब कुछ छोड़ के फॉरेस्ट में चला जाता हूँ. मतलब यू नो इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन दे रहे थे कि मैं सब रिनाउंस कर दूंगा. So those things he's explaining, Krishna is explaining कि देखो सेंसेस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है. जंगल तो चले जाओगे, बट साथ में आपका माइंड भी जाएगा, राइट, और सेंसेस भी जाएंगे, एंड दे विल नॉट लीव यू अलोन. So that is, this section talks about those points that Arjun made in the first chapter. Okay, so and feel free to stop me if you want. Anyway, so तीन तरह के लोग होते हैं. Okay, there is some at a very high level, there is a vikarmi, there is a karmi, and there are yogis. ठीक है, तो विकर्मी क्या होता है? Anybody remembers? The person who works, who do the work or karma without taking a center of Krishna. Okay, yeah, actually, okay, yeah, okay, I got it. But he any specific characteristic of such person? Because work and karma are different. So he works without Krishna in the center, is what you're saying, right? Yes, But Prabhuji. matter. okay, yes, somebody else was also saying something. प्रभु जी, वो बिना किसी रिजल्ट की आशा के मतलब कर्म करता है. जैसे होता है कि यदि अपन भगवान की भी सेवा कर रहे हैं और तब हमने किसी भी तरह की डिजायर रखी, तो वो विकर्मी नहीं कहलाएगा. तो वहां पर भी वो कि बस सिर्फ आपको भगवान के लिए करना है, दैट्स इट. नहीं माता जी, विकर्मी इज नॉट लाइक दैट. सो विकर्मी जो है होता है ना, वो बड़ा ही नीचे लेवल की चीज है. मतलब यू नो विकर्मी जो है वो, sorry, go ahead. The good or bad for him doesn't matter. I mean, the end result, what that person focus upon. Okay. I mean, whether it's a good deed or a bad deed, I think. Huh. Not sure. Yeah. Somebody Yes. doing an action without proper knowledge of what is supposed to be done. हाँ, मतलब सो बेसिकली विकर्मी क्या होता है ना, वो अपोजिट ऑफ व्हाट टू से, कर्म योग के सिद्धांत के अपोजिट वाला पर्सन है. सो ही इज लाइक, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, राइट. थिंक अबाउट राक्षस और इस तरह के लोग. ठीक है, एंड जो प्रभु जी मैंने बोला वो अकर्मी है क्या? हाँ, ओके, आई वाज कंफ्यूज्ड. या yes माता जी. So exactly, so this person, it doesn't have any distinction of good or bad. उसे तो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए. तो ये लोग, इसकी तो कोई लेवल ही नहीं है. He'll always do the opposite side of things if possible, most likely, right? He doesn't care, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता. So then there is some person who does karma but for the sense gratification, right? And they are called karmis. So अगर आप 2.43 which we read, right, if anybody remembers, anybody wants to 2.42 and 2.43 are the same verses, I mean as part of one verses, right? So वहां पर एक word आता है. So if you read that verse, let me read that verse. यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित. Okay, so यहाँ पर एक कौन सा वर्ड है? अविपश्चित. So अभी इस वर्ष में हम विपश्चित की बात कर रहे हैं, और इस 2.42 एंड 2.43 में अविपश्चित
की बात हो रही थी. So what does avipashchit means? अगर आप जाके देखोगे उसका, so it will say man with a poor fund of knowledge, मतलब person who don't have any discrimination. ठीक है, और ये किन की बातें हो रही हैं? ये कर्मी की बात हो रही है इस वर्ष में 2.42 and 2.43 में. ठीक है, so where what it is said is, if you want to know what a karmi means, then this verse has that answer. And so they are the people who will do, like जो वेदास को फॉलो करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, but their end goal is to go to heavenly planet, to achieve more power and things like that. They want to enjoy. So उनको बहुत ही clear है, those people are clear, कह रहे हमें तो sense enjoyment करना है, हमें उसके लिए जो करना होगा वो करेंगे, right? We do not care कि whether it is the right thing to do or wrong thing to do. So that is the verse which talks about it, avipashchit. और अब विपश्चित कौन होते हैं? तो योगीज जो होते हैं ना, योगीज आर द पीपल जिन्हें पता है कि मटेरियल एंजॉयमेंट जो है ना, सेंस एंजॉयमेंट, दिस लीड्स टू बॉन्डेज, इससे आप फंस जाओगे अगर आप सेंस एंजॉयमेंट करोगे. इतना तक क्लियर है. अब इतना क्योंकि क्लियर है तो उनको क्या समझ में आता है कि फिर ये सब मत करो. ऑफ कोर्स मत करो. आई मीन नोबडी इज सेइंग कि यू हैव टू डू सेंस एंजॉयमेंट, व्हिच इज राइट, बट they want to break free from it. So वो क्या करते हैं कि इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं. तो कृष्णा उन लोगों के लिए बता रहे हैं ये वर्ष कि देखो आप ना, जो पुरुषः विपश्चित, जो ऐसे लोग हैं ना, the yogis who are trying to renounce the sense objects, for them it is a very very difficult path. You cannot do it very easily, right? So and they will be dragged to this. In fact, any example you can think of जो ऐसे बड़े एडवांस्ड थे और इतनी मेहनत के बाद, इतने एडवांसमेंट के बाद भी they fall down because of they could not do the sense, they control the senses. Any example? Vishwamitra. Yes, Mataji, Vishwamitra, correct. Yeah. Do you want to tell the story? I don't know, maybe everybody knows, maybe not. या प्रभु जी उनका मान मेन का ने भंग किया था. Yeah, correct. So the sound of ankles, मतलब विश्वामित्र इतने महान ऋषि थे. इनफैक्ट काफी लंबा डिस्क्रिप्शन आता है उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने, he was a king, right, in the lineage of Lord Rama. So because of he wanted to defeat the Vashishta, correct, जो कि ब्रह्म ऋषि थे, और उनको डिफीट करने के लिए, बिकॉज ही सॉ कि अरे ब्रह्म ऋषि के पास बड़ी पावर होती है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के उन्होंने 60,000 ईयर्स तक तपस्या की. हम सोच भी नहीं सकते कितने जीरो होते हैं उसमें. सो आफ्टर दैट जस्ट इमेजिन 60,000 ईयर्स कोई सब तपस्या कर रहा है, और उसके बाद इतने करने के बाद इंद्र गॉट वरीड, राइट, क्योंकि इंद्र को टेंशन हो जाती है जब ऐसा कुछ होता है तो. एंड व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज ही थिंक्स कि अरे कोई मेरी पदवी ले लेगा, मेरी कुर्सी ले लेगा. And with that he sent apsara called Menka, right? And it is described कि like the sound of her पायल की आवाज सुन के उनके ध्यान टूट गया उनका, विश्वामित्र का. And then he got disturbed, and Shakuntala was born, and he again performed austerity for many more years, but he was not able to control the senses. और in fact एक जो इतना अच्छा काम करने वाले की अगर एक छोटी सी भी गलती होती है ना, तो उसको हम याद रखते हैं, राइट? अभी शकुंतला के बारे में ये सब ऐसा हुआ, विश्वामित्र फॉल डाउन, एवरीबडी रिमेंबर्स दैट, राइट, बिकॉज ही फॉल डाउन. सो चैतन्य महाप्रभु से इसकी मतलब सन्यासी अल्प छिद्र बहु कोरी माने, मतलब एक सन्यासी का ना एक छोटा सा छेद होगा ना कपड़े में, तो हर कोई बोलेगा अरे देखो छेद है उनके कपड़े में. सो या इफ यू आर एलिवेटेड पर्सन, देन एवरीबडी विल टॉक अबाउट the bad things for you. So but he fell down. That's correct. Any other example anybody can think of? Do you put the Ravan also in the same category? Ravan was a different category altogether, bro. Like he was he was not trying to control his senses. He was in fact of the other category, the previous avipashchit wali category.
पे फॉल करता था. He was not bothered, right or wrong. Because these are vipashit people who know कि मतलब अरे ये sense enjoyment is bad. We should not get into that. Many examples actually. अगर आप थोड़ा भी पुराण रख सकते हैं क्या कि उन्होंने वो जब राम जी ने धनुष तोड़ा और वो एंगर हो गए. आप परशुराम जी को बोल रहे हो? हाँ, मतलब उस समय उन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए ना वो. नहीं माता जी, वो गुस्सा ट्रांसेंडेंटल होता है वो सब उनका, मतलब यू नो ही इज विष्णु हिमसेल्फ. सो फॉर सच पीपल they can do anything they want, but basically वो सिचुएशन ही बड़ी अलग 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 थी उनकी. ही वाज नॉट, सो वो अपनी सेंस उस पे नहीं आ गए थे, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन वाज नॉट द पर्पस for him, right? It was, of course, as soon as he realized Ram, who is Ram, I mean, he was not bothered. And Parashuram himself is Vishnu, so yeah, for them anything is allowed. So, yeah, okay, I'll give you some example. Anybody knows this picture? एक योगी साधना कर रहे हैं पानी के अंदर और मछलियां वहां पे तैर रही हैं. सॉरी प्रभु जी, और भी ब्रह्मा जी का भी तो आ सकते हैं ना प्रभु जी, जब उन्होंने अपनी कन्या, क्या तो नाम था उनका, और फिर उनका मन. Yeah, but he was not a yogi, Mataji. But I agree. मतलब you know, इंद्रियाणि प्रमाथिनी. I mean that category he falls into. कि मतलब इतना ऐसे ऐसों के साथ हो जाता है, मतलब हम क्या बोलेंगे, मतलब शिव जी का एग्जांपल ले सकते हैं प्रभु जी, जो तो मोहिनी लीला में वो फंस गए थे भगवान जी के. हाँ प्रभु जी, बट बड़ा वो अलग ही एग्जांपल है. दैट इज टॉकिंग अबाउट अ डिवोटी एक्चुअली. और वो भगवान बेसिकली किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इफ कृष्णा वांट्स ना, तो बट दैट इज नॉट समथिंग वी कैन कोट. मतलब आई वुड रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, बिकॉज वो भगवान और शिव जी के बीच की बात है, बहुत ही समझ से परे है हमारे. दक्ष आ सकता है क्या इसके अंदर? दक्ष प्रजापति एक्चुअली उनका केस अलग ही है माता जी. मतलब उनका केस थोड़ा अलग सा है. उनका केस ये है कि हाँ, ही वॉज अ डिवोटी. अगर आप भागवतम में पढ़ोगे ना, तो इट डिस्क्राइब्स when Vishnu appeared in front of him, Daksha was such a great devotee, such amazing devotee. Vishnu appeared in front of him. Vishnu said कि you achieved the perfection of life. That was the level of Daksha as a devotee. So I would not call him, but he was not about sense enjoyment, sense restriction, right? वो योगी नहीं थे. मतलब वो यहाँ पे हम जिस वर्ष में बात कर रहे हैं ना, he was not a yogi. He was not trying to restrict the senses. We are specifically talking about people जो sense restrict करने की बड़ी कोशिश कर रहे थे. अभी ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, this person is called शौभारी मुनि. ठीक है, आप कितने देर पानी के अंदर रह सकते हो? 10 मिनट, 20 मिनट. This person was underwater यमुना के अंदर thousands of years, and the reason is कि अरे पानी के अंदर कौन डिस्टर्ब करेगा? With that thought, he went under Yamuna, okay, and he was sitting there trying to meditate. That was the level of Shabari Muni, thousands of years. Now, सोचो कितना इंद्रियाणी प्रमाथिनी. एक बार आंख खोली, ठीक है, तपस्या करते करते, और क्या देखा कि 2 फिशेस मेट कर रहे हैं. जस्ट थिंक, सच अ थिंग attracted his mind. तुरंत ही वो इंद्रियों ने माइंड खींच के लेके चले गए. एंड ही डिसाइडेड कि आई वांट टू गेट मैरिड, एंड ही केम आउट ऑफ वाटर. ठीक है, दैट ओल्ड पर्सन जो कि इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वाटर में है, जस्ट थिंक अबाउट हिज बॉडी, क्या हालत हो रखी होगी बॉडी की. हम 2 घंटे अगर पानी के अंदर हाथ रख दें तो हाथ कैसा हो जाता है. सो दैट गाय वेंट टू किंग मंदाता और जाके बोला कि मुझे शादी करनी है आपकी लड़कियों से. और उनकी 50 लड़कियां थी मंदाता की. और मंदाता सेड कि नहीं, मंदाता को पता था कि अरे ये बड़े भारी योगी हैं, इनके साथ पंगा लेना बेकार है. देन ही वेंट इनटू अ डिप्लोमेटिक मोड. उन्होंने बोला कि देखो, मेरी लड़कियों में से जो तुम्हें पसंद करेगी ना, उससे शादी कर लो तुम. I don't have any problem. And with that, now शौबारी मुनि realize कि अच्छा ठीक है, मैं तो इतना अच्छा दिखता नहीं हूँ, कौन शादी करेगी मुझसे. तो उन्होंने क्या किया, because by his yogic power he expanded himself to 50 forms and all of them very beautiful youths. And then वो गए उन लड़कियों के पास, and every girl was ready to marry.
kind of things, and he married all of them and he lived with them for years and years. Okay, and then he realized कि ये क्या कर रहा हूँ मैं. After many years he realized that. So the point is कि just imagine a fish mating. You see that, right? After thousands of years of penance, not a very big thing, right? I mean, like, लगेगा कि बहुत छोटी सी बात है, ऐसे कैसे तपस्या भंग हो सकती है. But that is the point Krishna is making here, कि इंद्रियाणि प्रमातिनी हरंती प्रसवम मना. So बहुत ही मुश्किल है कंट्रोल करना. अगर हम जो माइंड कंट्रोल जो लोग सोचते हैं ना कि हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे छोटी छोटी चीजें, आप ऐसे सोच के देखो कि अरे अब मैं 16 माला करने के बाद ही सुबह नाश्ता करूंगा या पानी पीऊंगा. जस्ट टेक दैट वाओ, राइट? आई मीन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो. अभी देखो आप एक दिन लगेगा कि अरे एक दिन नहीं पिया आपने, लगेगा, मन बोलेगा कि अरे बड़े एलिवेट हो गए हो, मतलब अब तो बड़े आदमी हो गए, बड़े डिवोटी हो गए. नेक्स्ट डे बोलेगा कि यार तबियत खराब हो जाएगी, ऐसा मत करो, मतलब थर्ड डे विल से कि यार ठीक है, मतलब चलो थोड़ा तो पी लेता हूँ. दैट इज द स्टैंडर्ड, राइट? हम अपनी पावर से कंट्रोल करने जाएंगे ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. दो स्मॉल थिंग्स आर आल्सो वेरी डिफिकल्ट. What makes it easy is surrendering to Krishna, right? Anyways, so Vishwamitra ka ek aur example, of course we talked about it. Anybody knows who's this? What's going on here? प्रभु जी, ये ऋषि का नाम जो अभी आपने बताया सौभारी है ना? हाँ, सौभारी मुनि. और वो राजा का नाम? मंदाता. Okay. I think this is Ajamila. हाँ, correct, yeah. Right, Ajamil, right? I mean, उसने अपने so he was like a very elevated brahmana, पता है ना? From a place called Karnikub. I mean, that place is called Kannauj now in Uttar Pradesh. So and he was a married person with his family, with parents living like that. और क्या हुआ, एक बार गए जंगल में लकड़ी लाने के लिए, देखा कि prostitute was doing something like, with there was a customer and the prostitute and they were engaged together, and just by seeing that he got attracted to that prostitute. Okay, or he just invited this problem to himself, right? That's why his name is Ajamil. और उसे लेके आ गए prostitute को घर पे, अपने घर वाली को घर से बाहर चली गई, parents को भी भगा दिया, and years he kept on struggling on this, right? So just small things. I mean, these people were of not so bad standard, but इतना कुछ करके भी फटाफट fall down हो गया. तो जस्ट इमेजिन कितना आसान है. और हम जैसे लोगों के साथ अगर घर पे टीवी चल रही है, बाहर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और आप क्या क्या देख रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ डिजायर्स आर यू एक्यूमुलेटिंग, सो इजी टू फॉल डाउन. हम तो विपश्चिता का लेवल ही बड़ा ऊपर है, हम हजारों साल के योग करने वालों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कॉन्कर, राइट? सो एनी अदर एग्जांपल एनीबॉडी कैन थिंक ऑफ, और वी मूव ऑन फ्रॉम एग्जांपल्स. जड़ भरत का प्रभु जी, जड़ भरत का तो माता जी, मतलब वो उन्होंने अपनी इंद्रियों को आई मीन उनके साथ सिचुएशन थोड़ी अलग सी हुई थी. मतलब हाँ, यू कैन कॉल इट कि मतलब वो अपनी इंद्रियों का समहाउ, बट he didn't fall down because of the indriyas, right? It was mostly the attachment which caused that. Yeah, attachment. Yes, Prabhuji. Yeah, the attachment caused the fall down. Yes, specifically not कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वो fall down नहीं हुए थे in general, but विश्वामित्र का ले सकते हैं ना प्रभु जी फिर? हाँ माता जी, वो बात किया विश्वामित्र वाला, आप शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किए. विश्वामित्र का एग्जांपल हम बात कर रहे हैं. सॉरी प्रभु. नहीं, इट्स ओके माता जी, इट्स फाइन. सो योगीज नॉर्मली क्या होता है ना, और भी बड़े सारे एग्जांपल हैं शास्त्रों में. देखिए आप दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आप कोई भी योगी की कैटेगरी के लोगों के एग्जांपल्स लोगे ना तो वो सारे इसमें फॉल करते हैं. नो मैटर व्हाट, इतना कुछ सेंस कंट्रोल, इतना कुछ कोशिश करने के बाद भी देयर इज अ चांस कि कभी एंगर आएगा, कभी all sort of all things will come there, right? So for yogis it's a very difficult path. बहुत मुश्किल और बहुत लंबा पाथ है योगीज के लिए क्रॉस करना है. So because what they try to do is कि dissociate their senses, right? अपने senses को उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं. और छोटा सा, that's what he is saying, Krishna here, कि छोटा सा कुछ आ गया ना तो बस इंद्रियां लेके चली जाएंगी मन को साथ में. But devotees are not worried about it, because what they do is they engage everything in Krishna's service, whatever it is, right? अगर खाने का मन है तो प्रसाद खाओ, whatever you want to do, you just engage it in Krishna's service, and it becomes purified.
That is the amazing part. You don't need to do any extra effort there. So yeah. So essentially, as I was saying, in fact, later we'll read a lot about mind and senses. मतलब कि मन और इंद्रियों का क्या कनेक्शन है. जैसे 15 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि जो माइंड है ना वो बहुत ही इट्स ऑल्सो ही क्लासिफाइज इन अदर वर्सेस एज ऑल्सो वन ऑफ द इंद्रियास. मन षष्ठानि इंद्रियाणि ऐसे बोलते हैं भगवान कि मतलब इट्स ऑल पार्ट ऑफ इंद्रिया बट बहुत ही सेंटर पीस होता है वो. मतलब 15.9 बताता है कि इट्स अ सेंटर ऑफ ऑल द सेंसेस. But it's very difficult thing to manage it like that. But अगर आप माइंड को छोड़ दोगे तो माइंड भी आपको परेशान कर देगा, बट सेंसेस जो है वो बड़ी आसानी से माइंड को लेके चली जाती है. बोथ सेंस ऑफ माता जी, वो सेंस ऑफ कुबेर थे ना, वो बड़े नालायक टाइप के बच्चे थे उसके. मतलब दे वर नॉट एट ऑल योगी के लेवल पे तो थे ही नहीं. दे वर लाइक और जो होते हैं ना कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी टाइप के लोग थे वो, द सन्स ऑफ कुबेर. बट तो उनका तो ऑब्वियसली फॉल डाउन वाज एनीवेज डिसाइडेड. मतलब मैं तो बोलूंगा कि उनको आई मीन नारद मुनि ने बेसिकली मर्सीफुली उनको कर्स कर दिया, अदरवाइज उनकी लाइफ ऐसे ही बर्बाद थी. I mean, it is the mercy of Narad, like, you know, amazing mercy. In fact, people would die to get that mercy कि भाई हमें भी ऐसा कर्ज दे दो कि हम कृष्णा के उधर जाके एक कुछ बन जाए. मतलब so that was the amazing curse that was given by Narad Muni. But otherwise तो वो काफी नालायक से थे. तो नॉट एट ऑल ऑफ दैट कैटेगरी. बट अगर आप दुर्वासा मुनि की स्टोरी देखोगे, आप और भी काफी योगीज हैं जो पुराण में जिनके बारे में आता है. सो ऑल ऑफ देम हैड दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी. बहुत सारे लोगों का यही हाल था. दे वर ऑल ऑफ दिस कैटेगरी. एसेंशियली दिस इज व्हाट हैपेंस. आई मीन आप आज भी देख सकते हो. आप आज भी अगर आप कुंभ मेला के जगह पर जाओगे ना, मतलब यू नो प्रयागराज और इस तरह की जगह पर, एंड यू विल रियलाइज कि इतने सारे योगीज आते हैं वहां पे. And they're all playing football, they are all चिलम पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, all sort of things they are doing. Now why does that happen even after इतना बैठ के अपना सब कुछ छोड़ के जंगल में बैठे हुए हैं, पहाड़ पे बैठे हुए हैं? Why do they get into these things? क्यों चिलम पीने की इच्छा अभी भी बाकी है? Why does that happen? It's very different for a bhakta. It's not the same. I mean, you know, one time Kanai Thakur was telling me he was going in a train, और of course he looks like a मतलब you know saffron robes, तो मतलब कोई साधु बाबा टाइप्स के हैं. तो उनको किसी ने वहां पर 4 साधु भी बैठे हुए थे बाहर टॉयलेट के पास के एरिया में, और ये जाने लगे टॉयलेट के लिए सुबह तो उनको बोला कि ये लोग अपनी चिलम विलम जला रहे थे, इनको बोला लो तुम भी ले लो. इन्होंने बोला नहीं मैं सब नहीं पीता. एंड ही सेड कि अरे क्या हो गया, ऐसे कैसे साधु हो, मतलब यू नो कोई चिलम नहीं पीते, कुछ नहीं करते. सो जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? दीस पीपल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड अ योगी, राइट? For a devotee, they don't get that desire at all. I mean, for them it's an alien concept. Why would they get it? मतलब हरि नाम में ऑलरेडी बहुत ही नशा है. मतलब you don't need any external thing for that. So yeah. So for yogis it's a difficult path. In fact, माइंड के साथ रहना और माइंड और सेंसेस को खाली छोड़ देना और कृष्णा के साथ एंगेज नहीं करना itself is a problematic situation, and that is the source of the problem. एक बार क्या हुआ कि राधा गोपीनाथ प्रभु है in the Mumbai temple. He's a very senior disciple of His Holiness Radhanath Maharaj. So he went to Radhanath Maharaj once. वहां पे क्या हो रहा था कि अगर आपको हिस्ट्री ऑफ राधा गोपीनाथ टेम्पल पता हो तो वहां पर लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ काफी सालों तक. सो एंड ऑल द ब्रह्मचारीज वेर वेरी डिस्टर्ब कि रोज खटपट होता रहता था. तो एक दिन राधा गोपीनाथ प्रभु गए वहां पे, एंड ही सेड कि महाराज मैं कहीं तो अकेला जाके रहना चाहता हूँ थोड़े टाइम तक, बहुत ही परेशान हो गए इस हल्ले गुल्ले से, बहुत थक गए. एंड राधा महाराज सेज कि अरे व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू माया, मतलब यू नो माया में जाना क्यों चाहते हो? बट ही सेड नहीं महाराज मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं कोई माया में नहीं जाना चाहता. आई जस्ट वांट टू लीव अलोन फॉर सम टाइम. ओके. एंड महाराज सेड यू आर नेवर अलोन. ओके, योर माइंड इज ऑलवेज विथ यू एंड द सेंसेस आर ऑलवेज विथ यू. सो आप सिर्फ डिवोटी एसोसिएशन में नियर कृष्णा, दैट्स द ओनली प्लेस वेयर यू आर सेफ. अदरवाइज आप कहीं पर भी अकेले जाके बैठ जाओगे तो यू विल गेट इनटू ट्रबल, at least at our level where we don't have any qualification. I mean, Radha Gopinath Prabhu, people like him can definitely handle it. We may not be able to handle it. So in fact पीछे अगर आप पढ़ोगे पीछे के चैप्टर्स, राइट, सेंसेस के लिए बड़े सारे उपमाएं दी गई हैं. venomous serpents, wild animals, things like that, right? So
they are like that only. So any questions so far? Anything? Does it make sense, right? The bottom line, one line story is that कि मतलब इंद्रियाणी प्रमातिनी मतलब senses से थोड़ा बच के रहो, बहुत easily fall down possible है. Okay. These Kumbh Babas and all, I mean, mostly they also gave their life, and they also, that put their all of their effort, whatnot, and all. Yeah. Are they into the wrong hands, or they don't have a full knowledge, and they put their, even that they are putting their life for some right thing, but then also they are not doing the right things? No, see, yoga is a proper path. Okay, nobody is saying कि yoga is not a proper path to achieve the supreme. It is a बहुत ही problematic path. आगे भगवान बताने वाले हैं, बहुत सारे verses में बहुत कुछ बताएंगे भगवद गीता में. As we move further, okay, he will what Krishna explains is कि the Brahman is no doubt it's a effulgence of God. It's a very peaceful place to reach, right? Similarly, Paramatma is Vishnu himself, right? So desiring for any of this is not wrong. आप मतलब no problem कि आप ब्रह्मन में एक हो जाना चाहते हो, परमात्मा के साथ साक्षात्कार करना चाहते हो, nothing wrong about it. It is just that these paths are very, very problematic because of this, what we are discussing. I mean, like what we'll discuss in the next verse, mostly because of that. But क्योंकि जब तक, and what the previous verse talked about, कि जब तक आपके पास higher taste नहीं होगा ना, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है path में आगे चलना. तो आप जाओगे आगे, but fall down हो जाएगा. So path में कोई problem नहीं है, but it's a slow path and it's a problem path with lot of problems. So आपको काफी सारे lifetimes लगते हैं. आपको बड़े सारे योगीज की ऐसी स्टोरीज मिल जाएंगी जिन्होंने कई लाइफ टाइम्स तक मेहनत की इसके लिए, ओके, टू अचीव दैट. इनफैक्ट फोर्थ कैंटो ऑफ भागवतम इट एक्सप्लेन्स दिस लैडर वेरी वेल कि योगा से भक्ति का लैडर कैसे होता है. क्योंकि आप योगा के लैडर में जब आप आगे जाते हो ना, बहुत आगे जाते हो, और आप परमात्मा से जब आपका साक्षात्कार होता है, देन यू रियलाइज कि ओके ही इज लॉर्ड हिमसेल्फ, एंड देन यू गेट इनटू भक्ति फ्रॉम देयर and you start thinking about him all the time and things like that. This is what is described there. और फिर वहां से आप भक्ति में आके जाके फिर भक्ति के पाथ से, so ultimately all the paths need to reach bhakti only. There is no other way out. बल्कि ये ज्ञानी जो है ना, ये तो बड़े problematic path वाले लोग हैं, ये तो ज्यादा ऊपर नहीं भी जा पाते हैं. They reach only Brahman and they come back. Yogis are way higher, but yogis ultimately go towards bhakti. And then achieve perfection. But the point is कि कोई गलत नहीं है पाथ, बस लंबा चौड़ा पाथ है. और इसमें ना प्रभुपाद says कि he gives a number. He says 98% people definitely fall down from this path. Okay, because होता क्या है ना कि जैसे ही आपको सक्सेस मिलती है योगा के पाथ में, प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपको सक्सेस मिलती है ना, आपके पास बड़ी सारी सिद्धियां आ जाती हैं. And when you get those siddhis, तो फिर आप अपने आप को ही भगवान समझना शुरू कर देते हो, मतलब because you start engaging them in sense gratification too. क्योंकि आप नहीं समझते हो तो आपके आसपास वाले आपको भगवान समझना शुरू कर देते हैं, राइट? तो आपको बड़े सारे साधु बाबा दिखाई देते हैं जिनके पास लोग आशीर्वाद के लिए जाते हैं, पैसे देते हैं, ये सब करते हैं, और आप और वैसे भी क्योंकि आपके ये सेंसेस और माइंड प्यूरिफाई नहीं हुआ होता है, तो फटाफट से उसमें फंस जाते हो. बिकॉज फॉर यू इट स्टार्ट्स मेकिंग लॉट ऑफ सेंस कि ठीक है, ये लोग मुझे इतना इज्जत दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट, हाउ डज इट मैटर, मैं एक बबूत निकाल देता हूँ, कुछ ना कुछ कर देता हूँ. मतलब देयर आर फॉल्स बाबा बट देयर फॉल्स बाबा बिकॉज देयर मस्ट बी सम ट्रू वंस आल्सो, राइट, जो सच में बबूत निकाल देते होंगे. सो दोज पीपल आल्सो गेट इनटू दिस ट्रबल, और वो अपना जो अल्टीमेट गोल है ऑफ लिबरेशन, दे गेट डेविएटेड फ्रॉम दैट, एंड दैट इज वेरी डिफरेंट देन अ भक्त. बिकॉज भक्त ऑलरेडी ना बहुत स्टेप बाय स्टेप प्यूरिफाई होके चलता है, एंड he is not bothered about ये भभूत वभूत निकालने के. He is very clear about the ultimate goal कि यहाँ से निकलना है, बस. That is the one goal that he knows about, right? So for him the path is very simple and clear. That's what I hope I clarified, right? So nothing and that's the point, right? कि बड़े सारे मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, मतलब बेसिकली बहुत सारे हजारों लोग ट्राई कर रहे हैं परफेक्शन के लिए, उसमें भी ना कुछ लोगों को ये सब समझ में आता है, ठीक है. It's not easy. It's not at all easy कि मतलब समझ में आए.
जो भगवान दूसरे वर्ष में बोलते हैं वासुदेव सर्वमिति यत महात्मा सुदुर्लभ, कि मतलब इतने महात्माओं में भी ना जिनको समझ में आता है कि वासुदेव सर्वमिति, वो बहुत दुर्लभ लोग हैं. दे आर स्पेशल पीपल, लाइक जो आप लोग बैठे हैं विथ कैमराज एंड नो कैमराज वट एवर, बट इट्स अ वेरी रेयर थिंग. Not many people realize that. Okay. And yeah. I mean, what I observe that most of the sadhu babas are very close to the intoxications, and sadhu baba and intoxication are kind of two very close things which is happening all around the things. Yes. हाँ, उसी वही कारण है प्रभु. मतलब प्रॉब्लम यही है कि मतलब आपने अपनी इंद्रियों और मन को तो प्यूरिफाई किया नहीं है, तो आपकी जो इच्छाएं है ना वो खत्म नहीं हुई हैं. आप वहां पर जाके छुप जाते हो, बट उससे आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होने वाली है. नेवर गोइंग टू हैपन. जब so many examples, right? I mean, people, that is one way of doing it. Think about Dhruv Maharaj. I mean, he went to the forest with a desire. He went to the forest, right? Just think about it. 5 साल का बच्चा जा रहा है जंगल में, कुछ कर रहा है. It's not a simple thing. उतना सब करके भी desire purify नहीं हुई थी. The desire was clear कि मुझे तो बड़ा सा राज्य चाहिए, इसलिए तपस्या कर रहे थे. वो तो जब भगवान के दर्शन हो गए, जब भगवान and then everything got purified for him. So only the association with God Lord can purify you. There is no other way. मतलब हमारी ये इतनी सारी जो इकट्ठी हुई चीजें गंदगी है ना, वो इतनी आसानी से जाने नहीं वाली है. और ध्यान करके भी अगर आप अष्टांग योग देखोगे तो अष्टांग योग इनफैक्ट दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सिमिलर थिंग. अगर वो आप समझोगे यम नियम के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर भी सिमिलर टाइप की चीजों पे ध्यान लगाने की कोशिश करवा रहे हैं वो आपको, कि ये मत करो, ये करो, और धीरे धीरे आगे बढ़ो और थिंग्स लाइक दैट. सो बट द पाथ इज कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, बट वो रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है. मतलब यू आर नॉट एबल टू डू इट. इट्स नॉट इजी. दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग, राइट? कि इतने पुरुष विपश्चित, मतलब इतने बड़े बड़े योगीज, बड़े बड़े लोग जिनको सब पता है कि गलत क्या है, सही क्या है, और वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं बहुत, दे विल नॉट बी एबल टू अचीव दिस. अगर कोई बोले ना कि मैं अपना एंगर छोड़ दूंगा, या मैं आज से रसगुल्ला खाना छोड़ दूंगा, थिंग्स लाइक दैट, इट इज नॉट इजी. द इंद्रिय जो है ना वो बड़ी खतरनाक है. मतलब दैट्स द पॉइंट. ओके, सो या सो फॉर बेसिकली सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स ना ये बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर चीजें हैं. मतलब हमारे पास क्योंकि मटेरियल बॉडी है, तो ये सेंसेस बनी उस टाइप की चीजें हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रेविंग हमेशा रहती है. बट इट्स अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन. मतलब हम जैसे ही इनके चक्कर में पड़ते हैं वैसे ही फंस जाते हैं. वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल देयर, राइट? सो दैट्स व्हाई in fact that's what Krishna says in another verse, right? 2 verses back we heard कि मतलब कुर्म अंगानी सरोजा, कि मतलब टॉर्टोइस की तरह बच के रहो, दूर अंदर अंदर होके रहो, राइट? ज्यादा इस चक्कर में मत पड़ो. इनफैक्ट any hand raised? Yes, yes, miss. यस प्रभु जी, यू मीन टू से दैट कि अगर जैसे हमको अगर गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, तो हम भगवान का नाम लेके बोल दें कि हमें आपको चढ़ा रहे हैं और हम खा लें. तो दिस इज सेंस ग्रेटिफिकेशन और व्हाट इज दिस लाइक? This is sense gratification. No, it is not okay. So how do we control then? वो तो मतलब रहेगा ही ना. हाँ, तो हमें मतलब भगवान का नाम लेके बोल दें और खा लें. जैसे अभी बड़ा पाव खाने का मतलब मन है, तो हम बड़ा तो घर पे बना लें और पाव बाहर से लेके आ जाएं, और फिर उसको भगवान को तुलसी वगैरह डाल दें, और उसके बाद बस बना लें. भगवान एक्चुअली प्रसाद बनाने की मशीन नहीं है बेसिकली. मतलब अगर हम ऐसा सोचेंगे ना कि अरे उनके सामने रख दिया और निकाल लिया, उस बीच में प्रसाद बन गया और एंजॉय कर लो. इट इज अबाउट कृष्णाज एंजॉयमेंट. मतलब दैट इज सो इट डिपेंड्स एट वेयर वी आर. लाइक मैं बता रहा था आपको गोविंदास के बारे में. अभी आप गोविंदास जाओगे ना यहाँ पे, तो हैदराबाद में गोविंदास इज नॉट वेरी ग्रेट, बट इफ यू गो टू दिल्ली और इफ यू गो टू पुणे, इवन मुंबई, द गोविंदास आर अमेजिंग देयर. मतलब चेन्नई में भी बहुत अच्छा है. तो वहां पर आपको दिखेगा कि ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ. मतलब फ्रॉम चाइनीज टू पिज्जाज टू whatever you can think of, everything is prasad. Okay, and people go there just for having that. Okay, even जो राधा रासबिहारी टेम्पल है मुंबई, वहां पे तो lot of celebrities come just to eat that. The meal that you get is like I think 60 odd items, 60-70 items are there in a meal. बहुत ही amazing है. So and nobody's but is that devotion? No, they don't bother, right? For them it is about enjoyment. But what is the good part about it? That food is offered to Krishna.
So that will purify no matter what. So if you ask devotees na, they don't go to the Govindas. Even if they see that, they will say ki theek hai, it's okay, but it depends on the level. They will say ki nahi, that is not meant for us. Okay, we are here to still control the senses beyond this point. It is even if it is prasad, it doesn't mean ki main apne senses ko itna engage karu. Why do I need to engage? And the craving also dies down beyond a point. You will not even have that craving to have it. So is it bad to do that? No, it is not bad to do it. But as I said, it's a matter of level. Later, at one point, we realized ki nahi, it's okay. I mean, it is about what Krishna likes. What special kya lagta hai Bhagwan ko, hum wo banayenge, or and we'll enjoy it. That's what it is. Right? It depends. So there's nothing wrong in doing that, starting from there. But at least we should make sure ki at least if we really want it to be a bhoga, then we should make it with love. I mean, like, love is not partial, as I said, right? कि बड़ा घर पे और पाव बाहर से नहीं आता है. मतलब फिर सब कुछ घर पे बनता है, और जब बनता है तो पूरा बनता है. मतलब from starting to end, you are making it with love, offering it with love, and then it is really we can think about it as prasad. Right? So yeah, Varun, yes. So Prabhuji, one more point. So I mean, जैसे हम लोगों ने बात की योगीज की, ज्ञानी की, ये सब लोगों का fall down का possibility है. So similar should be the case even with the bhaktas, right? So it is quite possible that even bhaktas might fall down. So what could be a probable way of saving oneself? Probably, yeah. Okay. Yeah, you're right. I mean, it's a good question. So of course, I mean, anybody can fall down. And also because see, there आगे के chapters में भगवान बताएंगे योगा रुक्ष और योगा रूढ़ के बारे में. So there is a practicing devotee, and then there is a devotee who's actually really perfected the whole thing. But अगर आप practicing हो, people like me, so then there is a chance of you falling down, because of course you have not yet realized the complete thing, right? But it's okay. Matlab, the good part, there are many good promises, but fall down is possible because these indriyas are complicated. इसीलिए मैंने बोला कि गोविंदास में भी डिवोटीज सोचते हैं कि गोविंदास में खाएं कि नहीं खाएं, राइट? क्या हमें जरूरी है चिली पनीर खाना? मतलब या मतलब, and even the taste, the good thing about you bhaktas is ki the taste will reduce on its own. You'll yourself you'll start losing that taste of lot of sense enjoyment, excess sense enjoyment. But if you have not, it's okay to eat in govindas, there's nothing wrong. But all I'm saying is कि हमें फिर भी प्रसाद भी है ना, तो हमें सोच के खाना चाहिए कि even if it is prasad, even if we know everything is prasad, we have to slightly be careful. I'm not saying कि मतलब don't stop eating prasad if that is still a good thing to do, but I hope the point is made कि मतलब हमें अपनी इंद्रियों को फिर भी सोच समझ के जो भगवान बोलते हैं ना कि कुर्मो अंगानी सर्वशः, मतलब एक कछुए की तरह संभाल के रखो. मतलब एक्सपेरिमेंट मत करो इसके साथ. ये मत सोचो कि मैं बड़ा डिवोटी बन गया हूं तो अजामिल की तरह जाके मैं कुछ देखाऊंगा, बार में चला जाऊंगा और इट्स ओके, मैं नहीं पीऊंगा बट इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये सब बहुत रिस्की मैटर है. तो इसलिए संभाल के तो खेलना है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं. आई थिंक लास्ट टाइम भी ये बात की थी और उसके पिछली बार भी ये बात हुई थी कि डू नॉट डू दिस at home. मतलब it's not an easy one. But if we fall down, the good promise is that it's okay, your devotion is not lost. For a person like yogi, maybe everything will be lost also for them, but nothing is lost. You will get another chance if you miss it. Yeah, but why take chances? So best to try to protect the devotion. And that is why Prabhupada gave these restrictions, right? Ki 4 regulative principles, at least ये 4 principles follow करो minimum, तो fall down के chances कम हो जाएंगे. Because look at Swabhari Muni, look at Ajamil, look at Vishwamitra, you'll see that there is a pattern there. They all fall down because of a certain type of indriya sukh, right? So why there is a reason why Prabhupada gave some principles. They are very thoughtful ones, and of course they are scriptural. They are coming not from Prabhupada, they are coming from Bhagavatam and the pillars of dharma and things like that. And
and there is a reason why they exist like that. So yeah, but it's risky, but we have to be very careful for sure. There is a chance. तो Yeah, we have प्रभु not perfected ये yet. योगी और सन्यासी हैं, ये जो गिर जाते हैं, मतलब ये जो भी तपस्या करते हैं, ये तो भक्ति में भी लोग गिर जाते हैं. हाँ माता जी, वही मैं बोल रहा था कि भक्ति में भी चांस है, और अच्छे अच्छे लेवल से भी चांस है. ठीक है, मतलब छोटे मोटे लेवल से नहीं. मतलब आप ऊपर जाके भी गिर सकते हो. वो प्रॉब्लम है तो है, दैट प्रॉब्लम डज एग्जिस्ट. इफ यू हैव नॉट प्यूरिफाइड इनफ तो फॉल डाउन के चांसेस हैं. इसीलिए अनर्थ निवृत्ति पहले का स्टेज है, और उसके बाद के स्टेजेस हैं बहुत सारे. ऑफ कोर्स उसके बाद भी नॉट बिकॉज ऑफ दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन, फिर भी फॉल डाउन का चांसेस है. जैसे कि राजा भरत का, he was a devotee and he was at a very very high stage, okay, in bhakti. अनर्थ निवृत्ति वगैरह के बहुत ऊपर जा चुके थे वो. तो वहां पर जाके रुचि के स्टेज में जाके ही फॉल डाउन. सो इट इज नॉट अनलाइकली कि फॉल डाउन हो कि नहीं. इनफैक्ट as we grow in devotion, there are many other type of creepers which come in, which could cause a fall down. For example, there are many things, I mean, like pride and such things come in as we grow in devotion. जैसे ही थोड़ा टाइम हो जाता है, हम अपने आप को सीनियर डिवोटी समझने लगते हैं, और यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. सो दे कैन कॉज द फॉल डाउन. तो इसलिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है. वो बात तो सच है, बट ये इंद्रियों वाला मैटर जो है उसमें भी केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सोच समझ के खेलना चाहिए, बिकॉज पता नहीं लगता कब भारी पड़ जाए. But the point which I am, the distinction is that here in the devotion you kind of purify your senses, so the desires they calm down gradually. आपके ये desires अपने आप ही and you don't need to restrict it, because ये restriction or not restriction, in devotion we do not talk about कि restrict करो senses को, but we talk about कि there is some regulation but direct them to Krishna. तो दैट इज द डिफरेंस. मतलब वहां पर डायरेक्ट वायरेक्ट करने का कुछ होता नहीं है, वहां पे आप सीधा सीधा उनको रोकने की कोशिश करते हो, इसलिए प्रॉब्लम होती है ज्यादा. और कृष्णा यहाँ पे उसी बात के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोग रोकने की कोशिश करते हैं ना, वो बहुत जल्दी फॉल डाउन कर जाते हैं, या कभी कभी फॉल डाउन होने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं. आप नहीं रोकोगे फिर भी चांसेस हो सकते हैं, राइट. ओके, आई होप इट इज क्लियर. Prabhuji, one more question. Yes, Madhavi. So Prabhuji, related to that only, so if we reach up to stage of asakti, right? So is it possible to still fall down? Because after that, I think you told like the Krishna will take care of it, right? Yes, Madhavi. Yes, Prabhuji. That is true. Only exceptions are there. Okay, बहुत ही exceptional cases हैं. Otherwise नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा cases नहीं है, उसके beyond नहीं है. You're right, मतलब उस स्टेज के बियॉन्ड बहुत ही कम केसेस है जिनके साथ ऐसा होता है. इतना कॉमन प्लेस नहीं है ऐसा होना, मतलब बहुत ही रेयर केसेस मिलेंगे बट स्क्रिप्चर्स में. बट द पॉइंट स्टिल रिमेन्स द सेम, देयर इज नॉन जीरो चांसेस ऑफ फॉल डाउन. उस स्टेज पे जाके ना बहुत आप अलग ही लेवल पे बिहेव करते हो, मतलब आपको आप इस तरह के लेवल की बातें ही नहीं करते हम लोग. वहां पे वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग उनके लिए कृष्णा इज अ रियल पर्सन. ओके, the attraction is so high. आसक्ति का मतलब होता है attraction is so high ना, कि आप जा कहीं रहे होगे, आपके कान में पड़ गया ना कहीं कीर्तन हो रहा है, आप सब कुछ भूल के वहां पे कीर्तन में बैठ जाओगे जाके. मतलब that level is very very different. हम लोग समझ नहीं सकते वो लेवल यहाँ पे बैठ के. So many examples of those devotees at that level, नरसिंह मेहता and people like that, जो बिल्कुल घर से निकले थे सब्जी लाने के लिए, घी लाने के लिए, रास्ते में कहीं कीर्तन डांस हो रहा था, सब भूल गए, घंटों तक वहीं पर ही डांस कर रहे हैं. जब सब खत्म हो गया, सब घर चले गए, तब उनको याद आया कि अरे मुझे तो वाइफ ने बोला था कुछ सामान ला लेके आना था. जब घर गए तो पता चला कि अरे एक लड़का आया था, उसने वो सारा सामान घर पे डिलीवर करके चला गया पहले ही, राइट. So those people are very different. We cannot understand them. So when we say Krishna takes care ना, तो he really takes care. वो घर के पे आके सामान भी देके जाते हैं. So the beyond our comprehension, such people, right. तो fall down बहुत अलग ही टाइप का है. Unless Krishna wants to set an example for us, then only those things happen. Okay. तो मतलब रुचि और आसक्ति तक पहुंचना डिफिकल्ट है, और अगर कोई पहुंच जाता है भक्ति में वहां तक तो
फॉल डाउन होना भी। माता जी अनर्थ निवृत्ति ही, अब पहले तो हमारे लेवल पे ना अनर्थ निवृत्ति पे ही फोकस रखना चाहिए। हम उनसे निकल जाए ना तो ये सब बड़ी बड़ी जगहों पे सोच सकते हैं। अभी तो उनके बारे में सिर्फ थ्योरी है, मतलब हमारे लिए हम सोच समझ भी नहीं सकते, हम कभी रियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि चीजें हायर टेस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नो कि so many higher taste related things exist around us. Chanting is a higher taste, right? But क्या हमारे लिए वो रियल है? Right? It is not real for us because of our anarthas. ठीक है? Because we do not want to leave our lower taste, because we are so much attached to our mind कि हम अपने भगवान को हम 2 घंटे देने को तैयार नहीं है। प्रसाद इज अ हायर टेस्ट, राइट? कि अरे जो बना रहे हो वो भगवान के लिए बना रहे हो, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं बना रहे हो, राइट? बट क्या हम वैसे प्रसाद बना पाते हैं? मतलब हम सोचते हैं ना, आज हमारा भिंडी खाने का मन है तो हम आज भिंडी की सब्जी बनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, राइट? सो दैट इट इज मोस्टली बिकॉज हम अभी उस लेवल के ऊपर नहीं आए। इट्स ऑल अबाउट अवर अनर्थास व्हिच आर ऑलवेज प्लेइंग अराउंड us. It's okay, I'm not saying ki anything bad about doing offensive chanting or eating prasad even for your sense gratification. It is better than not doing it at all. But we should understand कि अभी हम बड़े डिवोटी नहीं बन गए, मतलब राइट, इतना क्लियर होना चाहिए कि वी आर नॉट डिवोटीज yet. मतलब प्रभुपाद बोलते हैं डिवोटी मतलब प्योर डिवोटी, देयर इज नो अदर टाइप ऑफ डिवोटी बाय द वे, राइट? एंड प्योर डिवोटी का मतलब होता है अन्याभिलाषिता शून्यम, जो बताते हैं नारद मुनि कि ज्ञान कर्मादि नावृता। सो अन्याभिलाषिता शून्य मतलब कोई भी अन्य अभिलाषा शून्य हो जानी चाहिए। इट्स अ जीरो, नथिंग एल्स, राइट? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा, सिर्फ कृष्ण के लिए क्या अनुकूल है वही करेंगे बस, ठीक है? मतलब और कुछ नहीं। दैट इज कॉल्ड उत्तम भक्ति। इट डजंट मैटर कि हम क्या हमारे लिए अनुकूल है कि नहीं है। कृष्ण के लिए अनुकूल है तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दैट इज द प्योर डिवोशन। So stage is very high. Anyways, okay. Digression. Thank you, Matan. Yeah. So okay, let me think what else can be covered here. Yeah, Prabhupada said in a lecture sometime. बहुत 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 शुरू के lectures में 22nd Avenue में एक बार वो बोलते हैं कि मतलब जैसे prisoner होता है ना, उसको रस्सी से बांध के रखते हैं, वैसे ही कंडीशन सोल, जो हम जैसे कंडीशन सोल है, उनको यहाँ पर कैसे बांधेंगे? तो सेंस एंजॉयमेंट इज द वे, राइट? एंड दैट इज द वे थ्रू विच हम जैसे सोल्स को यहाँ पर बांध के रखा गया है। अदरवाइज आपको जेल में डाला है तो कौन सी चेन बांधी है, क्यों आप निकलना नहीं चाहते हो यहाँ पे? इट इज दैट चेन ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, राइट? बिकॉज ऑफ विच वी आर ऑल एंटेंगल्ड हियर, वी डू नॉट वांट टू लीव दिस वर्ल्ड, राइट? सो ही सेड कि that is what has caused, in fact I think, is it in this verse? हाँ, इस वर्ष में एक परपोर्ट में यमुनाचार्य का एक बड़ा फेमस वर्स है। ओके, लेट मी रीड द ट्रांसलेशन। तो यमुनाचार्य बोलते हैं, यमुनाचार्य इज द, एनीबॉडी नोस हु इज यमुनाचार्य? प्रभुजी, गुरुजी और श्री रामानुजाचार्य। हाँ, they never met basically face to face, but yeah, he's the guru of Ramanujacharya, right? They never met in yeah. So Yamunacharya was an amazing devotee. He says, since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Krishna, and I have been enjoying an ever new transcendental humor. Whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it, and I spit at the thought. So some really high level thing, difficult to comprehend, but Yamunacharya is saying कि अरे मैं इतना, जब से मैं कृष्णा का शेल्टर लिया है मैंने, मुझे ऑलरेडी मैं इतने रस में, यू नो, बेसिकली नव रस धाम ने, सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे मन में रस रहते हैं कि मुझे ये सब सेक्स लाइफ, सेंस एंजॉयमेंट बड़ा छोटा चीज लगता है। आई डू नॉट थिंक लाइक enjoying it, मतलब यू नो, अगर मुझे कुछ ऐसा थॉट भी आता है ना तो आई स्पिट ऑन दैट थॉट, बिकॉज मुझे आई डोंट फाइंड इट अट्रैक्टिव एट ऑल. This is what Yamunacharya is saying, and that's what Prabhupada is talking about devotion service. अब you will say कि अरे इस वर्ष में डिवोशन तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर तो इस वर्ष में बात कुछ और हो रही थी, राइट? यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि इंद्रियां बड़ी खतरनाक हैं और इस तरह की बातें. बट Prabhupada is amazing. He knows कि आगे क्या आने वाला है, so he just makes sure कि एवरी वर्ष में वो डिवोशन वाला पॉइंट बता देते हैं पहले ही क्लियरली.
सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि देखो एक डिवोटी जो होता है ना, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन का टेस्ट अपने आप ही कम होता जाता है, एंड ही डजंट केयर अबाउट इट. इनफैक्ट in one of the lecture, His Holiness Radhanath Maharaj says ki spitting at the thought is of course great, but you have to transcend this, right? I mean, and as in मतलब आर्टिफिशियली स्पिटिंग, हम बोले कि अरे ठीक है यमुनाचार्य ने बोला था तो अभी भी हमारे मन में कुछ थॉट होगा तो हम एक बार स्पिट कर देंगे एंड दैट इज इट, राइट, हमारा काम चल जाएगा. बट ही सेज कि अरे ऐसे, व्हेन ही वाज अ ब्रह्मचारी, ही सेज कि मेरे आसपास कई ब्रह्मचारी थे जो ऐसा बताते थे मुझे कि यार वी गेट अ थॉट ऑफ दिस एंड वी स्पिट ऑन दैट थॉट. ओके, एंड ही सेड कि कपल ऑफ देम आर मैरिड नाउ. ओके, so he was saying कि देखो we have to not just artificially try to conquer it, that was the same point he was making, but to really transcend it. When you transcend it, then you are there. क्योंकि हम लोग पढ़ते बड़ी सारी वर्सेस है, राइट, इधर उधर से बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद लेकिन क्या हम उनको समझ के अप्लाई कर पाते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग वैरायटी ऑफ थिंग्स. सो दैट्स द पॉइंट ही वाज मेकिंग कि हमें इस चीज के बियॉन्ड जाना है अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के, और वो कब पॉसिबल है? व्हेन वी सरेंडर टू कृष्णा, एंड दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी. I don't know how much time I have. Let me see if I can cover the next verse. Let me try doing that. Or any other topic, anything. But anyways, this is the bottom line for this verse. Already explained. Let me quickly. So the bottom line is the senses are very very strong, right? और वो हमारे माइंड को हर लेती है. And of course, we know these examples. But a person who's in Krishna's service, दैट उनके लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन का टेस्ट खत्म हो जाता है. ओके, और उनका माइंड जो है ना बड़ी इजीली कंट्रोल हो जाता है. एंड देयर आर एग्जांपल्स, राइट, अम्बरीश महाराज, यमुनाचार्य, so many of them. So for them the taste goes away. That's the point. Okay, anyways, yes. Prabhuji, can you share these slides after the class, both 59 I will not share. and 60? I can take a screenshot and share. Yeah, I'll do that. Yeah. Okay, thank you, Prabhuji. Okay, let me go ahead. Let me try. जितना होगा उतना करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, अगली बार करेंगे. Let me read the verse. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Okay, anybody wants to read it? Can I, Prabhuji? Yes. Yeah, please. Yeah, you go ahead, Madhumita. Mataji, you go ahead. Okay. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीन मत्परा वशे हि यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Thank you, Mataji. Okay, so translation says, one who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. So यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, सेंसेस के बारे में ही बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई थॉट कि इस वर्ष को भी थोड़ा सा कवर करते हैं, राइट. इट्स अदरवाइज वो आधी रह जाएगी वो वर्ष. एंड देन ही सेज कि सेंसेस को कंट्रोल करता है और कॉन्शियसनेस मुझ में लगाता है, एंड दैट इज द पर्सन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस. दैट पर्सन डजंट फॉल डाउन. ठीक है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. सो देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस पर्सन as compared to the previous person. जो पुरुषस्य विपश्चिता था, he falls down, he says. But ये जो पर्सन है ना, जो सेंसेस को कंट्रोल करके अपनी कॉन्शियसनेस मुझ में लगा देता है, that is the person of steady intelligence. Now I was saying something, right, कि कोई बोलेगा कि अरे प्रभुपाद जो है ये कहीं कहीं से तो किसी वर्ष में भक्ति योग लेके आ जाते हैं, राइट. अभी हम बात कुछ और कर रहे थे पिछले वर्ष में, वहां भक्ति योग की क्या जरूरत थी, राइट. वहां का क्यों एग्जाम्पल दे रहे थे फर्स्ट. और किसी से आप बोलोगे कि डिवोशनल सर्विस का कौन सा चैप्टर है भाई भगवत गीता में, सो पीपल, एनीबॉडी नोस व्हिच चैप्टर हैज द नेम डिवोशनल सर्विस? बिकॉज लोग बोलते हैं ना भगवत गीता में तरह तरह के योग डिस्क्राइब्ड हैं. सॉरी, 12th चैप्टर. हाँ माता जी, yes. 12th chapter has the name devotional service, right? So people will say कि अरे it has कर्म योग, it has all sort of yogas, और उसके अलावा डिवोशनल सर्विस भी है, मतलब भक्ति योग भी है, तरह तरह के योग डिस्क्राइब्ड है. अभी कोई बोलेगा कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कहाँ है, सेकंड चैप्टर वगैरह में भक्ति योग कहाँ से आ गया, राइट.
बट ये जो वर्स है ना, ये क्लियरली भक्ति योग के बारे में है ये वर्स, वेरी वेरी क्लियर थिंग, ठीक है। एंड प्रभुपाद बिकॉज न्यू कि ये आने वाला है, इसलिए ही वाज गिविंग दैट सेम थिंग इन द प्रीवियस वर्स आल्सो। सो एक्चुअली Advaitacharya, I know, just digressing. What he did once is कि भगवत गीता की जितनी, क्योंकि कोई बोलेगा भगवत गीता में भक्ति कहाँ है, इसमें तो सिर्फ फिलॉसफी है बड़ी सारी, राइट। तो अद्वैताचार्य ने भगवत गीता की सारी वर्सेस को, ओके, सारी वर्सेस को भक्ति के कंटेक्स्ट में परपोर्ट दिया था, ठीक है। वन वर्स ही वाज नॉट एबल टू फिगर आउट, तो ही वेंट टू लॉर्ड चैतन्य and Chaitanya Mahaprabhu made even that into bhakti. All of these verses are bhakti yoga, just देखने वाले की बात है। So this verse clearly talks about bhakti yoga, okay. So basically what it is saying is that कि full sense control जो है ना, वो तभी possible है जब आपका mind कृष्णा में fixed हो, otherwise it is not possible. This is what he is saying here, one liner thing is that कि मतलब you know अपने सेंसेस को तो कंट्रोल करना ही है, चाहे कुछ भी हो। रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट, बट योर कॉन्शियसनेस शुड बी फिक्स्ड अपॉन मी, एंड देन दैट पर्सन इज प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो स्टडी इंटेलिजेंस वाला पर्सन है, ही विल नॉट फॉल डाउन नो मैटर व्हाट, राइट। सो एज आई वाज सेइंग, राइट, कि दैट इज द रीजन व्हाई डिवोशनल सर्विस इज इंपॉर्टेंट, कि अदरवाइज हम अपने एंडेवर से ना अगर सोचेंगे कि एक दिन पानी नहीं पिएंगे बिफोर चैंटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, अपनी मेहनत से नहीं हो पाता ये सब। वी हैव टू इनफैक्ट दिस इज द वर्स, राइट। इट प्रभुपाद आल्सो, एंड हमने एक दो क्लास पहले कभी ये बात भी की थी, प्रभुपाद गिव्स दिस वर्स इन द परपोर्ट, इफ यू सी, राइट, सवाई मना कृष्ण पदार बिंदु। सो बेसिकली दिस इज द ट्रांसलेशन, एंड इट टॉक्स अबाउट महाराज अम्बरीश, एंड अम्बरीश महाराज, what was so special about him, right? He was a grahasth, अगर आप सोचोगे तो, and Durvasa Muni was a sannyasi, and Durvasa Muni couldn't control his anger, but Ambarish Maharaj, he was totally steadily fixed. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी वहां पे उनका एंगर हैंडल करने के लिए। he was equally humble, as much anger, I mean he was more humble than that, right? And why was that? ये वर्ष बताती है कि his mind was totally fixed upon the lotus feet of Krishna, right? His words were describing the glories of the Lord, and hand was cleaning Lord's temple, ears were hearing the words spoken by Krishna or about Krishna, eyes is seeing the deities of Krishna, right? So everything, every sense, every सारी इंद्रियों से वो भगवान पे लगा के रखा हुआ था उन्होंने, and this is the level, and with this he was able to control the senses and the mind, right? So in fact अगर आप देखोगे ना, तो इसमें पहली लाइन जो है वो ये है कि उन्होंने माइंड को पहले भगवान के लोटस फीट में लगा दिया था। माइंड इज बिकॉज ऑफ कोर्स माइंड इज प्रॉब्लमैटिक थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम माइंड ही एंगेज्ड ऑल द सेंसेस आल्सो, and that was the reason why he was able to tolerate, right? So that has to be very clear that this is the way, this is the only way to do it, there's no other way. हम जो बाकी जो अनर्थस की बात करते हैं ना, सारे अनर्थस सॉल्व कर सकते हैं अगर if we are clear about this particular aspect. I mean अगर ये वर्स समझ में आ जाए ना, तो every anartha is it's possible to conquer if we properly surrender to the Lord, right? Because see, okay, this is the question. अगर आप किसी के घर जाते हो, राइट, और गेट पे लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग्स, और आपको डॉग से डर लगता है, ओके, या डर नहीं भी लगता है, और आप घुसते हो, धीरे धीरे दरवाजा खोलते हो किसी तरह से, शायद आपकी बॉल अंदर गई है, और दरवाजा खोल के जैसे ही आप अंदर जाते हो तो कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, राइट, और फिर थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा कुत्ता भी सामने आ जाता है। नाउ व्हाट विल यू डू देन? व्हाट आर द ऑप्शंस डू यू हैव? बिकॉज आप अंदर आ चुके हो, उसका अपने गार्डन में उसके अंदर पहले ही आ चुके हो, राइट, भागना की कोशिश बेकार है। देन व्हाट शुड यू डू इन सच अ सिचुएशन? विल कॉल द ओनर, ओनर को बोलेंगे कि लाइक डॉग को बांध लो या फिर पकड़ लो। दैट इज द ओनली ऑप्शन ना, मतलब सो बेस्ट इज टू क्राई, टू शाउट, राइट, मोस्ट लाइकली जोर जोर से ओनर को चिल्लाएंगे, बुलाओ, बचाओ बचाओ, दैट इज द ओनली ऑप्शन। And this is the situation, this is what these two verses, the contrast is that कि अरे आप ये जो है ना सेंसेस और माइंड और ये सब जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये सब क्या है? दिस इज कृष्णास डॉग। तो इसलिए इनसे भाग के, कंट्रोल करके, बच के
बहुत आसानी से निकल नहीं सकते. So the only option is कि call out owner's name, right? And that's what we do every day morning. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And that is the way to control these dogs, right? Because all the owner has to do कि and that's it, right? और इतना करेगा owner और dog जो है वो calm down हो जाएगा. And when Krishna describes it in many verses later also कि बहुत आसानी से आप इस माया को से क्रॉस करके जा सकते हो अगर आप भगवान को सरेंडर हो जाते हो तो बहुत ही आसानी से. तो बट समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड बिकॉज हमने अभी सरेंडर किया नहीं है ठीक से, इसलिए हमें इतना परेशानी होती है कि हम ये कैसे सॉल्व होगा और वगैरह. बिकॉज इफ वी आर एबल टू सरेंडर मोस्ट लाइकली इट विल काम डाउन very easily for us, right? So and as we understand, right, everything belongs to God. So not just us but our mind and senses and everything, right? So ऋषिकेश का मतलब यही होता है कि मतलब the owner of senses, and that is what he is. So the person who is the owner of the senses can definitely control our senses. Because विश्वामित्र और ये सारे लोग क्या कर रहे थे, अपने सेंसेस को खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, and that they couldn't do that. But एक डिवोटी क्या होता है ना, डिवोटी जो है वो इन डॉग्स से भी कृष्णा की ग्लोरी गवा लेता है. मतलब सो भक्ति विनोद ठाकुर का एक फेमस सा सॉन्ग है, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणा रविंदर. सो what he's asking there is कि मेरा जो मन है ना वो भगवान की ग्लोरीज गाओ. That's what he's saying. That is what he's asking the mind to do. So that is what a devotee does. He is not he doesn't try to control the mind, but he just tries to engage the mind into Krishna's service, right? So ज्ञानी और योगी इस तरह के पाथ में नहीं जाते हैं. So for them it is very difficult, right? And any point anybody wants to make? Maybe I'll complete in next 10 minutes, whatever. I don't want to take beyond that. Okay. Yeah, but as I said, कि मतलब even devotees need to be careful, and even if it is prasad, we have to be very careful. That's what Krishna is saying here, right? कि अपने senses को control करता है वो, but अपना consciousness मुझ में रख के करता है. So that is what both the points are equally important, right? So even if it is prasad, we have to be careful. So because यहाँ से निकलने की जो कोशिश है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में, पानी में अपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश है. So you will always struggle. That is going to happen for sure, right? So in fact, as we saw right in the previous slide कि जो महाराज अम्बरीश थे वो अपने माइंड को पहले भगवान के उसमें लगा दिया था उन्होंने पहले, right? और apart from it he was also trying to engage the other senses. So because the mind is also a very powerful beast apart from senses, so it is important to equally control both of them, be it mind or be it senses. If you don't do that, it is very difficult, right? So anyways, any questions so far? It's clear, right? maybe we are repeating the similar thing, but one line summary of this verse is that if you surrender to Krishna, if you engage your consciousness into Krishna, then you can easily control your senses and easily control your vices. I mean, like सारे के सारे अनर्थ जो है वो control करना possible है. Yeah. Okay. So yeah, I don't need to give example. I think कि mind की power के ऊपर, but it's can be easily proven. मतलब mind has his mind of his own. I mean, आप अगर न्यूयॉर्क जाना चाहो तो आज बैठे बैठे न्यूयॉर्क घूम के आ सकते हो. अगर आप चाहो इमली की चटनी खाना तो आप इमली की चटनी खा सकते हो, जो कि बहुत टेस्टी और खट्टी होती है. और मेरे ऐसा बोलने से हो सकता है आपके मुंह में पानी भी आने लगे, क्योंकि आपकी सारी इंद्रियां जो है ना वो भी इसके कारण ये सुन के ना वो सारी इंद्रियां भी एक्ट करना शुरू कर देती है, right? It is so powerful, right? So I mean, yeah, and yogis की हालत ऐसी है कि if I say कि do not think about a pink monkey, right? So the first thought that will come to your mind is pink monkey. So इसलिए वैसी सी हालत है. They are just trying to control the mind and senses, which doesn't work out very well. So
या इनफैक्ट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब ये योगीज के तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब आसपास के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक बार राधानाथ महाराज who was a sannyasi in ISKCON, he was traveling somewhere, मतलब in flight, और उनके बाजू में ना एक और सन्यासी भी थे, मतलब कोई और थे, बुद्धिस्ट थे कोई। अब उन्होंने देखा एरोप्लेन वालों ने दोनों सन्यासी सन्यासी हैं, दोनों को बाजू में बिठा दिया, तो वो बुद्धिस्ट बाजू में बैठे थे। एयर हॉस्टेस आई, खाना लेके आई, उसने पूछा क्या खाएंगे, तो राधानाथ महाराज सेड नहीं नहीं, आई एम फाइन, मतलब आई विल नॉट हैव एनीथिंग, आई एम ओके। और बाजू में जो बुद्धिस्ट था उससे पूछा वेज और नॉन वेज, एंड ही सेड नॉन वेज, एंड ही वाज बैफल्ड, मतलब यू नो, बिकॉज़ राधानाथ महाराज सेज कि अरे बुद्धिज्म मींस कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम अहिंसा परमो धर्म, मतलब दैट इज द बेस थिंग ऑफ इट, एंड दिस पर्सन सेज कि हाँ हाँ आई विल ईट नॉन वेज। सो ही आस्क्ड हिम कि क्यों नॉन वेज क्यों खा रहे हो, एंड दिस पर्सन सेज कि अरे आई डिडंट किल दैट, मैंने तो मारा नहीं है, मुझे तो ऑप्शन दिया गया है, तो मैंने इसलिए, मुझसे पूछा खाओगे, तो मैंने बोला हाँ खाऊंगा, पर मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। So he was just giving reasons. I mean, he says, explains कि see this is the level, right? हमारी इतना करके भी, इतना सब, इतना आगे जाके, इतना इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करके भी they fall down. For them it is very difficult. The one way is if you are clear about the higher purpose, if you are clear about the higher goal, then these things become very very easy. And there are many examples like that actually. So okay, I have a question. So Krishna says कि mind and senses can be controlled if we develop higher taste, right? तो जैसे कि महाराज अम्बरीश ने higher taste develop किया, what stops us from developing that higher taste? Yes माता जी, नहीं माता जी, hand was up or down? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मेरा कुछ और क्वेश्चन था। यहाँ पर अनुवाद में एक मत पर दिया हुआ है, मत पर का क्या मतलब है? मींस डियर डेवोटी और व्हाट? मत पर शब्द मत परा राइट, हिंदी में मत पर लिखा है। अच्छा वो मत परा है माता जी, हाँ मत परा, वो डॉट डॉट है ना, वो होता है, तो वो मत परा है एक्चुअली। यस, so मत परा, yeah exactly, you're right. I mean, as the translation goes, let me see, but that's what it means, what you're saying. Let me read what translation is here. In relationship in me, that's correct. I mean so devotee, हाँ, तो मत परा का मतलब जो प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिखते हैं ना कि फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी, ठीक है, दैट इज दैट पर्सन, सो ही इज अ डिवोटी ऑफ कोर्स, जो कॉन्शियसनेस भगवान में लगा के रखेगा, दैट इज अ कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, राइट, दैट इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस, सो ही इज अ डिवोटी। तो मत परा मींस कृष्णा कॉन्शियस, दैट्स व्हाट इट मींस, राइट? थैंक यू। ओके, या सो व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम डेवलपिंग हायर टेस्ट, क्योंकि क्यों हम ऐसा टेस्ट डेवलप नहीं कर पाते? प्रभु जी अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट टू व्हाट माता जी? मटेरियल वर्ल्ड और हाँ, अटैचमेंट टू लोअर टेस्ट आई वुड से, या हाँ, मतलब यू आर राइट, अटैचमेंट, करेक्ट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट समटाइम्स इट्स आल्सो फियर ऑफ लूजिंग दैट टेस्ट, कि अरे पता नहीं कैसा होगा, हमारी ये भूली बिसरी अच्छी सी एक आदत है, मतलब पुरानी बचपन की, और वो छूट जाएगी बिकॉज मुझे ऐसा कुछ सुबह जल्दी उठना पसंद, मतलब यू नो जल्दी उठना पसंद नहीं है, क्योंकि थोड़ा और सोने में, सुबह ही सोने में मजा आता है, तो कैसे छोड़ दूं ये सुबह सोने की आदत, राइट? तो बिकॉज हम अपनी उस टेस्ट को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इनफैक्ट वी आर नॉट एबल टू सरेंडर ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ रीजन, राइट, दैट वी आर नॉट एबल टू सरेंडर fully to Krishna, and we are not ready to serve, and that also is a big reason why we don't get that higher taste. If as much as we can surrender, that much, so actually एक सोल का ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है, जिसमें ना जिसमें भोग वृत्ति नहीं होती है, सेवा वृत्ति होती है, यू नो, एज इन डिजायर टू सेंस एंजॉयमेंट नहीं होता है एक सोल के लिए, बट इट इज द डिजायर टू सर्व, दैट इज व्हाट इज द नेचुरल पोजीशन ऑफ सोल। बट हम बहुत ही अपोजिट में बैठे हुए हैं, वी हैव दैट डिजायर टू एंजॉय एंड नो डिजायर टू सर्व, और जितना हम भगवान को सरेंडर कर पाते हैं ना, उतना हम अपने नेचुरल पोजीशन में जाते हैं, जहां पर देयर इज ओनली डिजायर टू सर्व, अनुकूलेन कृष्णानुशीलेन भक्तिरुत्तम, जैसे जैसे
सिर्फ भगवान के लिए जो अनुकूल है, जो भगवान के लिए कंड्यूसिव है, that is what we try to do. There is no other thing. I mean, if you think about devotees now, any devotee, you will see the same thing. They don't care about themselves. It is only about Krishna. They only care about Krishna. What is what can give pleasure to Krishna? Just think about gopis. Just think about any other devotees. They don't care about themselves. Right? We are not able to surrender of that level, and that's why it's difficult. But yes, you are right. That's also a valid thing, that we have that fear, we have that attachment, क्योंकि हमने वो हायर टेस्ट ही नहीं किया, तो हमें पता नहीं है कि ये सब होता क्या है, and that's what restricts us. Okay, what else should I tell? Yeah, okay, we talked about this one. So ये bottom line remains this, as I said, as soon as Lord is in your heart, right, all the bad things go away. Right. This is what Tulsidas ji says. Yeah, बहुत ही फेमस सा वर्स है. इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम. Yeah, something I really like this verse, and only this verse of the Ram Stuti is like wonderful. I am never able to forget this. बहुत ही amazing है. What he says is मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम. मतलब कि मेरे हृदय में भगवान, एंड उसकी पहली वाली भी बहुत अच्छी है कि मतलब शंकर शेष मुनि मन रंजनम, कि मतलब जो शंकर जी शेष नाग और मुनि के जो मुनियों को खुश करने वाले हैं, जो भगवान, वो मेरे हृदय में निवास करो. और क्यों निवास करो? उससे क्या होगा? कामादि खल दल गंजनम, जो काम आदि जो अनर्थस है ना, they will just go away. If you are in my heart, then none of it can remain, right? So that is the beauty of having Krishna in your heart, because then nothing of this can stay. It's not possible, right? A very amazing realization Tulsidas ji shares here, right? In fact, yeah, in one of the, I don't know, some people who have attended some classes of Kanai Thakur might know this verse. Maybe some, maybe not, I don't know. So this is what he was sharing once. So this verse comes in Tulsi Ramayana. It says, Nanya spriha ragupate hridaya smiriye satyam vadami cha bhavan akhilantaratma bhaktim prayach raghupungavas narbharam me kamadi dosh rahitam kurumana samcha. So he says, O Raghupati, I don't want any other desire in my heart. I am speaking the truth, as you are the super soul of all the worlds. Okay, so he says कि अरे मैं कोई डिजायर नहीं है और मैं सच बोल रहा हूँ. क्यों? और आपको पता है सच बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबके हृदय में रहने वाले हो, आपको सबके हृदय की बातें पता है. और he says, oh hero of the Raghu dynasty, please bestow loving devotional service and vanquish all the anarthas like lust, etc. from my mind. So with devotional service, all the anarthas, they just go away. This is what is the prayer here. So I think the bottom line, one liner to understand is what I said, right? कि मतलब surrendering to Krishna as much as we are able to do, the anarthas, they just vanquish on their own. That is why अनर्थ निवृत्ति के पहले का जो प्रोसेस है वो भजन क्रिया है. कि जब हम साधु संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, जो कि भजन क्रिया मतलब हम भगवान को अपने it's like associating with the God, but there are many other ways of doing it, right? So but if you associate with the Lord, you actually do the anarth nivriti. Right. Any questions, any points anybody wants to make? Okay. Yeah, maybe I was not clear, that's why everybody is quiet. Cool. No, Prabhuji, you are clear. Okay. You got it everything. Thank you. Okay. If that is the case, everybody is quiet, then it's okay. I'm happy. Yeah. So in fact, talking about this topic, I realized कि
we were talking, right, and couple of weeks we were discussing, musing about it. Now another proposal I have is, should we talk about anarthas? And the thought is like this, कि मतलब I can share some lectures on anarthas, specific ones, like let's talk about pride, anger, greed, lust, all of that one by one. And yes, Mataji, yes, yes, Mataji, correct, you are right, it's from Tulsi Ramayana. Yes, Mataji, is from Sundarkand. That's correct. So basically हम एक थोड़ा सा time, 15-20 minutes we can discuss about one anartha. And the way to discuss, I'm thinking, is not like one person presenting. One person will be the owner and he'll need to talk about it, but others can also pitch in, right? Because we all want to get out of anarthas for sure, right? So what we can do is, I can share a couple of lectures in the group, or we all can go together about read about it, and then one person shares and the others also add. And in fact, apart from whatever I have shared, if others have heard in some lectures, they can also share that, and we discuss one topic at a time. Does it make sense? But yeah, I So, have Yes, Prabhuji. Yes. request. Right. Definitely, we need to. I mean, especially I need that session to be covered, and so one anarthas. And apart from this, any I mean examples. Apart from the scriptures which are related in our day-to-day life on these anarthas, where we can connect, and because knowingly or unknowingly it happens every day, yes. and we get into that. So Yeah. if the examples which are related to current life can be Yes. also discussed, that would be good. Yes, Mataji, that is the plan. कि मतलब let's discuss some. I know it's a it's a difficult topic. See, one thing remains. I will tell you what. अनर्थ निवृत्ति जो है ना, वो इतनी short process नहीं है. It can take years, sometimes more than a life also. Okay, so ऐसा सा है हिसाब किताब. So इसलिए we can, if we thinking कि हम फटाफट से निकल जाएंगे, actually क्या होता है ना, जब प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो दिखाई देता है कि कहीं तो मूव हो रहा है, बट जब प्लेन बाद में ऊपर जब हवा में चल रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई कहीं चल ही नहीं रहा. हमें ऐसा लगता है कि हम तो अंदर बैठे हुए हैं, वही बादल, वही सब कुछ ऐसा ही है. That is sometimes the situation also. We may be making progress, but we don't realize. अगर अपने आप को काफी साल पीछे वाले अपने आप से मिला के देखे ना, then you realize कि अरे I was a different person at that time. I used to whatever, बात में गुस्सा आता था, बात में कुछ होता था, things like that. But if you have to look, that gap has to be reasonably long, and then you will realize कि अरे बहुत कुछ change हो गया. But sometimes we don't realize that. That is another good idea, Mataji. Shiksha Ashtakam, right? Yeah, that was another thing I was contemplating. In fact, there are so many things to talk about. I can tell you. I mean, Shiksha Ashtakam है, जिसके हम verses पे बात कर सकते हैं. There is also 10 offenses, right? हम एक offense पे बात कर सकते हैं, and we can go deeper there. I was contemplating on all of this, and I thought कि let's start with some place, right? Because otherwise contemplation ज़्यादा हो जाएगा. So कहीं से start करते हैं. But yeah, that is the plan, Mataji, कि मतलब after this we can go to that part of holy name side of things. We can go to Shikshashtakam, we can go to 10 offenses. They have to be covered no matter what. But the point then is कि मतलब we'll cover less verse. Maybe we'll keep less than an hour or something for the discussion, and then discuss this part in parallel. So we will do that, because otherwise we'll have to pause Bhagavad Gita or start a new session, new class. That is also problematic. So yeah, what I can do is I can share the, I mean, if everybody, because everybody has volunteered for this, I will actually share a list of names कि कौन एक topic lead करेगा. That is the thought, right? In a random order, of course. और फिर I will share some lectures. In fact, if you have any lectures, you can feel free to share. Anybody can share it, and we can all go through it together and discuss it, right? If that will be helpful, so that we are armed properly. And Richa Mataji, your point is very valid. कि मतलब let's talk about even practical things. But as I said, कि sometimes those things happen. But this is the solution. This is just, we have to keep in mind this one. Ki, if we have Krishna in heart, then lot of these things can be controlled on its own. And that on its own it gets controlled also. But yeah, let's discuss specifics about it.
we cannot live in theory. Okay, if it makes sense. Any other questions, correction, comments, whatever of that category? All right. Yeah. So then we are done. Thank you for joining and tolerating me for quite some time. Thank you. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रभु जी नरसिम्हा आरती। ओ यस माता जी प्लीज प्लीज। मैंने सोचा था कि मैं आपको बोलूंगा आज सुबह आज, बट आई फॉरगॉट। ओके या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग या बिफोर एवरीवन लीव्स। क्या नाम है प्रभु जी? यस यस माता जी प्लीज प्लीज डू दैट। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद सॉरी प्रभु जी, प्रहलाद लाद दाहिने। प्रहलाद लाद दाहिने। हिरण्याकाशीपूर्वक्षः हिरण्याकाशीपूर्वशः श्रीलताङ्कानखालाय। इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। यतो यामि ततो नरसिंहा। बाह्ये नरसिंहा हृदये नरसिंहा। बाह्ये नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये। नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये। तव कमलवरे नाथा अद्भुत शृंगारलिका हिरण्यकशिपु कानुवृंदा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। तब कर कमल भरे हिरण्यकशिपु तनुभूषण केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद।
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। भक्ति विघ्न नाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल हरि बोल। जय माता जी की जय। थैंक यू माता जी। थैंक यू फॉर गिविंग। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू।